रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना अभी तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ओके ओके, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था इसके लिए. ओके, सी yesterday we have started with the types of research, and in the types of research we have done pure research and applied research. So what we have understood through this two type of a research, under pure research, only to get the knowledge we are doing the research, we are finding out the information, that's it. Okay, but when we are talking about the applied research, so here we are coming out with a certain problem and we are trying to find out solution to the problem also. Okay, this is what your applied research. So that can be the problem solving, or we can say the totally problem oriented research. तो ये दो टाइप अपने हो गए थे. Now we'll start with the empirical research. So what is empirical research here? Empirical research uses empirical evidence. Evidence मतलब यहाँ पे we need to show some proof. Okay, so that is called your empirical research. It is a way of gaining knowledge by means of direct and indirect observation or experience. Empirical research is based on observed and measured phenomena. It derives knowledge from actual experience rather than from the theory or belief. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब डिपेंड ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली एक्चुअली what are things are happening, so that we are studying here and that we are observing. तो यहाँ पे जो most important part है, that is your observation. It can be the direct or the indirect observation, or we can say the experience. यहाँ पे ऐसे नहीं कि just knowledge लेना है. This is not an important thing when we are talking about the empirical research. So here we are directly experiencing the problem, or we can say we are actually observing the problem here. Okay, so empirical research is published in book and journals. Empirical research is defined as a research based on experimentation or observation, that is evidence. Such research is conducted to test a hypothesis. The term empirical means information gained by experience, observation, or experiment. In every scientific method, evidence must be empirical, meaning that it is based on evidence. Empirical evidence can be analyzed quantitatively or qualitatively. Some researchers combine question which cannot be studied in laboratory setting. Particularly, okay, my voice is audible, student? Yes, am I audible? Yes. हाँ. हाँ, some researchers combine qualitative and quantitative forms of analysis to better answer question which can, अच्छा ये हो गया था हाँ, which cannot be studied in laboratory setting, particularly in the education and social sciences. The word empirical is attributed to Greek medical practitioners who rejected dogmatic doctrines and preferred to rely on the observation of phenomena. Researchers attempt to describe accurately the interaction between the instrument, that is human sense, and the entity being observed. This type of research has empirical cycle consisting of. देखो अभी आपको क्या समझे एम्पेरिकल रिसर्च मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि हियर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द रियल एक्सपीरियंस. what we have seen in the pure research and in the applied research, there we have seen that we are only gaining the knowledge. okay, किसी और से हमें कुछ information मिलता है and we are believing कि वो हमें correct information दे रहे हैं करके. Same thing with the pure research also. Even for the applied research, we are coming out with the problem, then we are asking everyone what is your point of view, how to solve this and all, and then we are coming with the conclusion. So that is your applied research. But when we talk about the empirical research, यहाँ पे ये होता है कि suppose if we are coming out with a certain problem, तो वो problem को हम लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस करेंगे. हमारा खुद का वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा. So here the importance is been given to the experience, then again the observation. Okay, ये और we can say experience, observation and experiment को भी यहाँ पे importance दिया गया है. अभी आप लोग बोलेंगे कि मैम लेकिन ये सोशल साइंस में कैसे हेल्पफुल रहेगा. तो सोशल साइंस में कैसे हेल्पफुल रहेगा. सपोज इफ आई वांट टू डू द स्टडी ऑन द TY BBI स्टूडेंट्स, their problems, their issues, that all their challenges, everything I need to study. So मुझे वो स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा. आई नीड टू सिट विद देम, आई नीड टू observe their all the classes, I need to be with them for the full academic year, and then I have to see कि like what वो लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही काम मुझे करना है.
अगर जो टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन मुझे खुद को भी फॉलो करना है एज ए रिसर्चर, एंड देन with that direct experience I will come to know कि like what exactly the kind of a problem is being faced by the student, वो मुझे समझ में आ जाएगा। मतलब सिचुएशन को जस्ट इमेजिन नहीं करना है, सिचुएशन के अंदर आपको जाके आपको वो ऑब्जर्व करना है और वी कैन से एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर एम्पिरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है एम्पिरिकल रिसर्च में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज योर ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एम्पिरिकल फैक्ट्स एंड फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि तुम लोग ऑब्जर्व करो कि अच्छा चाहिए प्रॉब्लम से क्या स्टूडेंट के, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैम हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का मीनिंग ये होता है कि हम एज ए रिसर्चर अपने हिसाब से कुछ कंक्लूजन लेके आते हैं कि TYBBI students are not able to concentrate more on the study. The first thing, like during online lecture, they are not that much attentive. Second thing, the teachers are not able to see the student whether they are really attentive or not. So that way we are assuming, ठीक है। वहाँ पे तुम लोग अटेंटिव भी हो सकते हो लेकिन सारे के सारे तो नहीं होते हैं ना। सो देयरफॉर दैट वे वी कैन डू द अजम्पशन। हाइपोथेसिस करना मतलब क्या, अजम्पशन लगाना कि शायद ऐसा हो सकता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इंडक्शन, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस बनाना है। डिडक्शन, डिडक्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस एज टेस्टेबल प्रेडिक्शन, मतलब हाइपोथेसिस अजम्पशन भी ऐसे बनाओ कि जो तुम्हें वहाँ पे आप उसको चेक कर सके, टेस्ट कर सके उसका, दैट वे। टेस्टिंग, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो भी आप लोगों ने हाइपोथेसिस जो भी अजम्पशन लगाया है अभी आपको उसको टेस्ट करना आना चाहिए। इवेल्युएशन एंड देन इवेल्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग, अजम्पशन आपने जो भी लगाया उसको आपको बाद में स्टडी भी करना है कि ये अजम्पशन करेक्ट है या नहीं करके। सो व्हाट यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, एम्पिरिकल रिसर्च में आप लोग मुझे बताओ, इज इट ओनली फॉर गेनिंग द नॉलेज, हम लोग सर्वे करते हैं या फिर यहाँ पे कैसे रहता है, एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या फिर जस्ट सर्वे को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टेल मी हियर, व्हाट यू ऑल से, एम्पिरिकल रिसर्च में व्हाट इज इम्पोर्टेंट वन, बताओ क्या समझा आपको। एम्पिरिकल रिसर्च में सर्वे करना मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इधर उधर जाके, ठीक है। ऐसा एम्पिरिकल रिसर्च में किया जाएगा या फिर यहाँ पे खुद वो एक्सपीरियंस किया जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी, क्या लगता है आपको, व्हाट विल बी द सिचुएशन अंदर सब एम्पिरिकल। कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। यस, खुद एक्सपीरियंस करोगे और उसके हिसाब से आप वहाँ पे अजम्पशन लगाओगे कि ये प्रॉब्लम है शायद से इधर। आर यू गेटिंग मी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ओके एंड देन एक्सपीरियंस, इन तीन चीज़ों को इंपॉर्टेंट दिया है एंड ऑन दैट बेसिस वी आर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस। हम लोग उसको फ्रेम करते हैं एंड देन वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड आफ्टर टेस्टिंग वी आर कमिंग आउट विद द proper conclusion. So this is what happening in your empirical research. Is this clear, student? Yes. Is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now Yes, ma'am. next one here, scientific and social research. Okay. So first we will see like what exactly the scientific research here. Scientific research is application of scientific method to the investigation of relationship among neutral phenomena or to solve a medical or technical problem here. Research is a fundamental to modern business. Scientific research is a research into question posted by scientific theories and the hypotheses. This type of research requires huge capital investment but provides significant result. This is very important line now. Scientific research is scientific investigation of the known for the purpose of discovering the unknown. It is undertaken with a clear purpose and the objective to lead into the problem identification. The conclusion drawn through the data analysis and interpretation of the result should be objective based on the fact and not on subjective evaluation. Scientific research focuses on solving problem. It is an objective method and pursues step-by-step logical approach. It analyzes situational factors surrounding a problem. It monitors phenomena through prediction and explanation. देखो यहाँ पे क्या है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल रिसर्च, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च। सो साइंटिफिक रिसर्च मतलब क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो हम लोग लेबोरेटरी सेटिंग में, लेबोरेटरी में जैसे रिसर्च करते हैं,
फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर वायरस जो है ये क्या है। जैसे अभी हम लोगों को पता लगता है कि व्हाट इज़ द डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो कैसे डेल्टा प्लस बन चुका है। ठीक है, पहले इट वॉज डेल्टा, नाउ हाउ इट हैज़ बिकम डेल्टा प्लस, क्या दोनों के फीचर्स अलग अलग है। हाउ वी कम टू नो ऑल दिस थिंग, इट इज़ ऑल कम टू नो थ्रू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ओनली। देखिए, हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, देन ओनली वी आर कम टू नो कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हेन वी आर फॉलोइंग द साइंटिफिक रिसर्च स्टेप, सो उसका जो कंक्लूजन रहता है, दिस इज, इट गिव्स यू द मोर एक्यूरेट कंक्लूजन। it is not at all based on your subjective thinking। subjective it means आपको आपको क्या लग रहा है उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मायने नहीं रखता है साइंटिफिक रिसर्च में। what exactly your experiment is coming out with the conclusion, ठीक है, एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो आपको पता चलता है थ्रू द साइंटिफिक रिसर्च। आप अपना वहाँ पे साइकोलॉजिकल कुछ भी अजम्पशन वहाँ पे लगा नहीं सकते हो कि चलो बाकी जगह पे ऐसा हुआ है करके शायद ये ऐसा होगा। सी दे आर टोटली सेइंग लाइक द डेल्टा प्लस वेरिएंट इज टू डेंजरस कंपेयर विद द ऑल अदर वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। ठीक है, ये उनको क्यों पता चला, बिकॉज वट एवर द फीचर दे हैव फाउंड कि कितना जल्दी वो स्प्रेड होता है, कितना इफेक्टिव रहता है, उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन जल्दी काम नहीं करता है। सो कंपेयर विद अदर अदर वेरिएंट दे आर एबल टू कम आउट विद द कंक्लूजन कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है करके। ओके, और ये सब उन्हें कैसे पता चलता है, थ्रू द साइंटिफिक रिसर्च ओनली। जो उनके स्टेप बाय स्टेप फीचर्स रहेंगे, जो स्टेप्स रहेंगे उनका इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके अकॉर्डिंग they are coming out with the proper conclusion। so this is the type of a research which will going to give you the more accurate result। अभी आप बोले कि मैम लेकिन एम्पेरिकल रिसर्च में तो हम लोग खुद भी वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी शायद एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। यस, वो भी दे सकता है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल को, so I think scientific research will going to give the more accurate result, because here we are experimenting, and experimenting in the sense कि we are trying to come out with the accurate conclusion। but when we'll talk about the empirical research, so there we are formulating the hypothesis। हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम लोग वहाँ पे assumption लगाते हैं कि शायद ये रीज़न हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो शायद के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे करके उसके अकॉर्डिंग। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, वैसे नहीं रहता है। साइंटिफिक रिसर्च में टोटली लेबोरेटरी सेटिंग, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन रहता है। वो कंट्रोल सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा और सिचुएशन को चेंज करेंगे तो क्या रहेगा। सो दैट वे वी आर एबल टू कम आउट विद द कंक्लूजन अंडर साइंटिफिक रिसर्च। सो देयरफॉर इट गिव्स यू द एक्यूरेट रिजल्ट हियर। ओके, अभी इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हियर। A clearly defined goal. A scientifically conducted study tries to answer a clearly defined research goal. The nature of study helps to determine methodology, analysis of data, and how the finding will be stated. Questions relating to the study should be pinpointing. Example, what are the top 3 qualities associated with our brand? Or how does the sales visit correlated to the converting of potential customer? Inquiries of this type enable the researcher to move closer to the goal। A clearly defined goal, it means what here, you should know very well what exactly you are trying to find out। ठीक है, आप जनरली नहीं बोल सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा है मुझे प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, नहीं, आपको कौन से प्रॉब्लम्स को ढूंढना है आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो दैट वे वी शुड हैव द क्लियरली डिफाइंड गोल when we are doing the scientific research। Then the neutral wording. At times, it is found that the researcher prepares the questionnaire in such a way that he gets the answer that he wants to read. This is being dishonest। This problem is solved when the researcher uses neutral wording, giving adequate scope to the respondent to present their unbiased opinion। जनरली अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, लाइक वी पीपल आर ऑल्सो सेंडिंग द क्वेश्चनर किया ये फिल करके दे दो करके। ओके, हम लोग को रिसर्च करना है। सो वहाँ पे क्या रहता है कि वी आर आस्किंग यू वन क्वेश्चन एंड वी आर ओनली गिविंग यू 4 ऑप्शन। सो लाइक आपके लिए कोई चॉइस नहीं रहता है कि अरे मुझे मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है करके। सो देर विल नॉट बी एनी चॉइस टू यू। so what they are saying here, but when we are doing the scientific research, so at that time you should not give any option to the respondent। आपको कोई ऑप्शन देना नहीं है, you should be unbiased totally on that one and you should allow the respondent to give their own opinion also। वहाँ पे वैसा होना चाहिए। then the next one, ये proper sampling। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्ट, ये सैम्पलिंग क्या होता है वगैरह उसका भी डिटेल आपको रहेगा
आने वाले लेक्चर्स में. See, sampling is the process of selecting items from the population so that the sample characteristic can be generalized to the population. Sampling involves both design choice and the sample size decision. Any difference between the test group and the population are known as sampling bias. Example, the researcher takes into account only the customer leads and the email, the survey to find out market acceptance of the new product. In this case, there are two types of sampling bias that takes place. Firstly, he's asking only the regular customer, and secondly, responses are analyzed only of those who care to reply. Hence, proper sampling will facilitate साइंटिफिक रिसर्च है. उन्होंने क्या कहा है कि प्रॉपर सैम्पलिंग वहाँ पे होना चाहिए. अभी सैम्पलिंग मतलब क्या रहता है कि रिस्पोंडेंट जो आपको आंसर दे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये मेरे रिस्पोंडेंट है, तो मुझे उनसे एक वैसे रिस्पोंडेंट मुझे मिलने चाहिए. और वो भी ऐसे नहीं कि मेरे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नहीं, कि नहीं चलो मेरे एरिया में जो लोग रहते हैं जो मुझे पहचानते हैं, मैं उनसे ही जाके क्वेश्चन पूछूंगा, उनसे जाके आंसर लेने वालों करके. दैट पे यू शुड नॉट बी बायस. ओके, तो आपको कैसे करना है कि सैम्पल साइज आपको बराबर से चूज करना है कि जिसके थ्रू यू विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. देन अगेन, दोज हु आर द सैम्पल, वो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. द सैम्पल हु कैन गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ऐसे आप लोगों को रिस्पॉन्डेंट चूज करने हैं. नेक्स्ट उन्होंने और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को कस्टमर से फाइंड आउट करना है कि उनका क्या व्यू है करके, तो उस टाइम पे हम लोग कस्टमर का लिस्ट निकालते हैं और उनका ईमेल देखते हैं या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं. लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या वहाँ पे पिन पॉइंट किया है दैट इट मीन्स व्हाट, कि जो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है आप उनसे ही बात कर रहे हो. आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपके कस्टमर हो सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं है, आप उनसे तो बात नहीं कर रहे, तो वो भी बायस जैसा हो जाता है. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग शुड नॉट बी हैपन. You should take each and every one in when we are doing the scientific research, तो वहाँ पे respondent सब proper होना चाहिए. Next one है controlled research. See, scientific research attempt to test the effects of one change by attempting to prevent the effects caused by other changes. मतलब यहाँ पे एक की वजह से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वहाँ पे पता होना चाहिए. ऑफ अ रिसर्चर यूज कंट्रोल ग्रुप. These groups are subjects similar to the group being studied, but for whom either the studied changes is not made or a neutral change is made. For example, advertising campaign increase sales in a season. Okay, a right way would be to compare the sales behavior of one market which was exposed to the campaign with that of similar market which was not exposed to the campaign over the same period of time. उन्होंने क्या कहा है, कंट्रोल रिसर्च मतलब हियर वी शुड एबल टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट. जैसे उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, अगर हम लोग को ये पता है कि इफ़ वी आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एक पर्टिकुलर मंथ में हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मतलब एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी वी आर एबल टू इंक्रीज अवर सेल. ठीक है, लेकिन ये आप आपको अगर एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि ऐसे सच्चे में होता है क्या, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओनली उतना अपना सेल इंक्रीज हुआ है, तो उसको अगर आपको उसका एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि चेंबूर मार्केट है, चेंबूर में व्हाट वी कैन से, अच्छा चेंबूर में कोई दो मॉल मुझे बताओ, एनी टू मॉल्स. चेंबूर में मॉल है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे. चेंबूर इज हैविंग एनी मॉल? यस स्टूडेंट, Yes, ma'am. बताओ मुझे, नाम बताओ. मैम है ना मैम. कौन सा है? हाँ एक है, के एक है. स्टार. हाँ के स्टार. और कौन सा मॉल है? और कोई? फिनिक्स मॉल मैम. लेकिन फिनिक्स तो कुर्ला का है. कुर्ला का हो गया ना वो तो. चलो हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि फिनिक्स चेंबूर में ही है, ऐसा अज्यूम करते हैं. सो देर आर टू मॉल, वन इज द के स्टार एंड द फिनिक्स इन द चेंबूर, दैट वी आर अज्यूमिंग. तो लेकिन ऐसा साइंटिफिक में अजम्पशन नहीं रहता है, वहाँ पे एग्जैक्टली लिया जाता है. लेकिन अभी तुम लोग को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि के स्टार मॉल में मैंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया और वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट को सेल किया. और सेम एरिया है, वही के लोग हैं, वही कस्टमर्स है, वही कस्टमर मतलब लाइक द एरिया इज द सेम. सो आई एम अज्यूमिंग सारे लोगों का जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, दैट वी आर अज्यूमिंग हियर. ओके, so KSR Mall may have started with the advertisement campaign and there I found that there was an increase in my sale.
लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि सच्चे में एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हुआ है क्या, तो मुझे फिनिक्स मॉल में ये देखना है कि वहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, जस्ट मेरे कमोडिटी को रख देना है. सो देयर आई हैव टू कंपेयर कि वहाँ पे लोग मेरे कमोडिटी को खरीद रहे हैं या नहीं करके. सो ओके. सो विद दैट वन आई विल कम टू नो कि नहीं, जस्ट बिकॉज आई हैव डन द एडवर्टाइजमेंट करके केस्ट और मॉल में मेरा ज़्यादा सेलिंग हुआ, लेकिन मैंने फिनिक्स में वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया करके मेरा वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हुआ. देन वी कैन कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन कि यस, advertisement is the strategy which will going to increase in the sale of your commodity. Okay, so that is what we are saying, control research. एक सेम सिचुएशन क्रिएट करो और सेम सिचुएशन में एक मतलब एक जगह पे क्या हाल है, दूसरी जगह पे क्या हाल है, वैसे हम लोग को फाइंड आउट करना, मतलब कंट्रोल करना. नेक्स्ट वन ईयर, statistical significance. It is not always true that every change in data actually means something. Phenomena involving humans will vary randomly. Statistical tests for the significance of a change, such as the chi-square test, will indicate whether the change you have measured is really an effect of the factor under study or merely a random variation. Statistical significance मतलब क्या होता है कि when we are doing the research activity, तो उसको conclude करने के लिए we are using certain formulas. Okay, so ये जो formulas है ये basically तुम्हारे scientific research में use किया जाता है. ओके, अदर रिसर्च में इतना नहीं यूज होगा, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में इसको यूज किया जाता है. देयरफॉर इन साइंटिफिक रिसर्च स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हैज अ लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस. सो ये हो गया अपना साइंटिफिक रिसर्च. कितने टाइप देखे अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट? टेल मी हियर, हाउ मेनी टाइप्स वी हैव सीन? कम ऑन स्पीक अप. 4. हाँ, 4. कौन से देखे हम लोगों ने? Pure research, applied research, empirical research, हम्म, scientific and social research. नहीं, अभी तक सोशल नहीं देखा, अभी तक हम लोगों ने साइंटिफिक ही देखा. ओके, कंपेयर ऑल दिस 4 रिसर्च. आपको क्या लगता है कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा? टेल मी स्टूडेंट, which type of a research among these 4 will going to give you the exact conclusion? Tell me, which one? Yes, come on, speak up. प्योर देगा, अप्लाइड देगा, एम्पेरिकल देगा या फिर साइंटिफिक देगा? कौन सा वाला रिसर्च तुम्हें एग्जैक्ट कंक्लूजन देगा? यस स्टूडेंट. Empirical, ma'am. कौन सा? Empirical, third one. Empirical. Okay, Manoj is saying empirical. What about the others? Yes. Anyone else? Come on. तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? क्या चालू है ये जल्दी बताओ. ओके, महेश्वरी ने कहा अप्लाइड रिसर्च, प्रिया ने कहा प्योर रिसर्च, आई वुड से साइंटिफिक Social. रिसर्च. Okay, Scientifical. yes, scientific will going to give you the exact result because वहाँ पे totally control situation में देखा जाता है कि exact क्या effect हो रहा है करके. Okay, so compare with all these 4, scientific research will going to give you the exact result. Okay, now let's talk about the social research here. Social research is conducted by a social scientist following a systematic plan. Social research method can be classified along a quantitative or qualitative dimension. Social scientists use various methods to study the social phenomena from census survey data derived from millions of individuals to the in-depth analysis of a single issue such as family breakup. Social research is the scientific study of society. Social research examines a society's attitude, assumptions, beliefs, trends, and rules. Social research has vast scope as it covers the entire race or a country. Popular topics of social research include poverty, racism, class issues, voting pattern, criminal behavior, sexuality, etc. Social research determines the relationship between one or more variable. For example, girls' education and higher family income. Researcher will look for underlying concept and cause and effect relationship of a social issue. Social researcher use wide range of qualitative and quantitative methods to explore attitudes and the experiences and to understand the pattern of social behavior. देखिए, अभी सोशल रिसर्च मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे
सोशल टॉपिक लेते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, एट दैट टाइम वी आर टेकिंग द सोशल टॉपिक। सोशल टॉपिक, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट होल्ड। ओके सी, इन द अंडर सोशल रिसर्च वी आर टेकिंग एन ए सोशल इश्यूज, हम लोग सोशल इश्यूज को लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सोशल इश्यूज मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या लेंगे, जैसे कि पॉवर्टी के बारे में स्टडी करना है, रेसिज्म के बारे में स्टडी करना है, क्लास इश्यूज के बारे में, लोगों का वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है, वाई सर्टन पीपल लाइक why the few people are having the criminal behavior, sexuality के बारे में। So this type of topic we are studying into the social issues, social research, okay। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि when we are talking about the social research, तो यहाँ पे we have to consider the maximum population, okay। और लोगों का क्या रहता है, लोगों का थिंकिंग, सोसाइटी का थिंकिंग, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट वन। जैसे पहले लोगों का गर्ल्स एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और अभी लोगों का गर्ल्स एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो दैट काइंड ऑफ अ चेंजेस वी विल गोइंग टू स्टडी इन आवर सोशल रिसर्च। यहाँ पे इफ विल गोइंग टू आस्क कि मैम यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है क्या, देन आई विल से कि नहीं, जितना साइंटिफिक रिसर्च हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देता है उतना सोशल रिसर्च हमें यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बिकॉज यू नो वी आर आस्किंग टू द पीपल, वी आर आस्किंग टू द रिस्पोंडेंट लाइक अस, मतलब एक, और लोगों का क्या रहता है कि हर एक चीज़ के लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा चेंज होता रहता है। सो वी कैन नॉट से इट इज़ फिक्स वन, ओके। तो सोशल रिसर्च जैसे अभी तुम लोग अपने सेमेस्टर 6 में करने वाले हो, जो टॉपिक लेने वाले हो आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, वो भी आपका सोशल रिसर्च के अंदर ही आ जाएगा। वो कैसे सोशल रिसर्च में आएगा, बिकॉज वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं करने वाले हो, आप लोग क्वालिटेटिवली देखने वाले हो, क्वालिटेटिव डेटा लेने वाले ज़्यादा करके कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एसबीआई के ऊपर, देन एसबीआई जो सर्विसेज देता है उसके ऊपर वो लोग सेटिस्फाई है या नहीं, कौन से लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रखता है करके, देन अगेन जो लाइक हाउस वाइफ्स है उनका क्या साइकोलॉजी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उनका क्या अवेयरनेस है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गोइंग टू टेस्ट हियर। तो आप लोग उनका साइकोलॉजी पूछोगे, लेकिन बोलने के लिए कभी कभार लोग बोल देते हैं, लेकिन नो बडी इज गिविंग यू द एग्जैक्ट व्हाट वी कैन से एग्जैक्ट रीजन फॉर एनीथिंग, ओके। तो सोशल रिसर्च आई थिंक नहीं, इतना ज़्यादा वैलिड कंक्लूजन नहीं देता है एज वी हैव सीन ऑलरेडी इन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये होता है आपका सोशल रिसर्च है, तो यहाँ पे सोशल टॉपिक को लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठेवता येईल तुला, हाँ ठेवतो, ओके। हिस्टोरिकल रिसर्च, लेट मी सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, okay, total 4 points are there. Okay, shall we start with the historical also? Still 4 minutes are there. I think we can complete here. Okay. Yes, ma'am. Historical research is objective evaluation and synthesis of evidence and facts, helping the researcher to draw conclusion relating to the past. Historical research is commonly used in both business research and the social research. Some business problems can be effectively studied only through historical research. For example, problems in economics, management, and the related area. In order to study rise of family business in India, researchers have to go through the historical data. Historical reasons have contributed to the rise of certain business. ओके, सी यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में मुझे समझाना है आप लोगों को कि हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च टोटली डिपेंड रहता है तुम्हारे सेकेंडरी डेटा के ऊपर। मतलब अभी जैसे तुम लोगों को सपोज फाइंड आउट करना है, व्हाट व्हाट एग्जांपल वी कैन गिव, उन्होंने कुछ दिया है क्या? हाँ, देखो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ शुगर फैक्ट्रीज। मतलब हम लोग ऐसा स्टडी कर रहे हैं कि जो शुगर फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र के, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर किन फैक्टर के वजह से वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाए। सो किन फैक्टर के वजह से, मतलब ये ऑलरेडी फैक्टर से कंट्रीब्यूट किया है और हम लोग जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। So that could be called as your historical research. Other way also what we can say कि हाँ, nowadays why the girls education is being given the priority by the government or by the public also, that we can say। ठीक है, लोग क्यों गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, why there is suddenly increase in the literacy level of फीमेल का लिटरेसी लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये अब हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि फीमेल्स का लिटरेसी लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये क्यों हुआ है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से वो इंक्रीज हुआ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाया था और वो पॉलिसी की वजह से कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए, एंड देन अगेन न्यूज़पेपर में या फिर व्हाट वी कैन से गवर्नमेंट का डेटा में क्या रिकॉर्ड दिखा रहा है, कौन से साल में ज़्यादा फीमेल ने वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए स्टार्ट किया, उसके पीछे क्या रीज़न था। सो दैट वे वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न। मतलब जब हम लोग ऑलरेडी डेटा है अपने पास और उसी डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डेटा ऑलरेडी है, मतलब क्या हो गया, वो हिस्ट्री हो गया कि पहले किसी ने वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उसी को हम लोग यूज़ करके अभी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर हिस्टोरिकल रिसर्च हियर। मतलब ये टोटली सेकेंडरी डेटा पे बेस रहेगा। आप लोग अभी जैसे कि शुगर फैक्ट्रीज के बारे में बात करें तो अभी के हम लोग वर्कर से बात नहीं करेंगे, कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो पहले जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन पे लाएंगे कि 2019 में इतना वहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, 2020 में इतना कंट्रीब्यूशन हुआ। सो दैट इंडिकेट्स देयर वाज अ ग्रोथ इन द शुगर फैक्ट्रीज। ओके, सो दैट वे वी विल गोइंग टू यूज द प्रीवियस डेटा, इसके लिए उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? समझा आपको? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Manoj, please take a screenshot of attendance. मैं taken.